अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू नॉट एवरी वुमन. दिस इज़ मरियम कैवान. आज के एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है. जो ख़वातीन देख रही हैं वो तो देखें ही, बट आई वुड वांट ऑल द मेन टू इवन वॉच दिस एपिसोड एंड रिकमेंड दिस टू देयर फ्रेंड्स, फैमिलीज़, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उन इश्यूज़ के ऊपर जिनके बारे में कुछ अर्से पहले तक नहीं थी अवेयरनेस. लाइक ख़वातीन को नहीं पता था कि वो कैसे बैंक अकाउंट भी खुलवा सकती हैं. हमारा अपना बैंक अकाउंट होगा. बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे देखे, खुदा न खास्ता हस्बैंड की डेथ हो गई, जो गार्डियंस हैं अब वो नहीं गाइड करे, या डिवोर्स हो गई और ख़ातून बेचारी कार्ड लेके फिर मैं क्या करूँ, मुझे तो इस सिस्टम का कुछ पता ही नहीं. बट ओवर द ईयर्स वी हैव सीन अ शिफ्ट. बहुत बेहतरी आई है, बहुत चेंजेस आई हैं. एंड देन वी हैव ऑल्सो सीन वुमेन इन बैंकिंग, इन फिनटेक्स, इन द लीडरशिप पोजिशंस. सो दैट इज़ लाइक सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर ऑल द पीपल हु आर फॉलोइंग. क्योंकि एक माइंड में आता था कि ये तो अनअटेनेबल सी पोजिशंस लगती हैं. अब वो ग्लास सीलिंग्स जो हैं हमने टूटते हुए देखे हैं वर्ल्ड वाइड एंड इवन इन पाकिस्तान. एंड वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स, she's with us in the studio. We have Kuratulain Chaudhary. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, Mariam. How are you? I'm good. How are you? I'm good. I'm good. She's the Vice President Women Financial Inclusion and Women Advocacy के ऊपर भी बहुत बात करी होती है. She is associated with Mobilink Microfinance Bank Limited. Kuratulain, सबसे पहले तो ये जो पोजीशन, ये यू नो बीइंग हेयर, बीइंग अ वुमन, क्या माइंड में था? बचपन में क्या सोचा हुआ था? बड़े होके क्या बनना है? क्या यही था ही या कोई और ड्रीम था? जैसे बचपन में होता है ना, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ. व्हाट वाज योर ड्रीम? So, to be honest, like when I was obviously मेरी childhood में तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि I would become like a leader or I would become like a VP position or be in a bank. But yes, I've always wanted to be in a position where I could create an impact. So growing up, एक चीज़, I was very like a big fan of Princess Diana. So I used to always say that I mean the kind of impact she used to create and the lives she used to touch. तो मुझे हमेशा ही होता था when I grow up, whatever I do, I just want to have that kind of impact on people. And then of course seeing I've been blessed. My mother was also very independent and she had worked all her life. And, then I have also mostly the women in my family have been very independent and hardworking and, have had good positions. So that really got me going to think that, this is something that I want to do. But not specifically that I wanted to be into banking. But yes, like I would say that if I would become a teacher or if I would become a lawyer or something, whatever I would do, I just wanted to create that impact and, change lives. You had that mindset. अच्छा, जैसे आपने बाकी बात की, being a lawyer या किसी और एजुकेशन में चल जाओ, तो वहाँ पे भी we've seen women doing that. तो एक आपको लगता है कि easy access भी होगी और क्योंकि वो एग्जाम्पल देखिए तो हम भी वहाँ पहुँच सकते हैं. बट बैंकिंग एंड देन फिनटेक्स इस तरह की जो है वहाँ पे बहुत कम, मतलब रेयरिटी होती थी. सो हाउ डिड यू एंटर? वॉज इट डिफिकल्ट? वॉज इट चैलेंजिंग? Yes, it was. To be honest, I entered by chance. I will not lie because I was looking for a job. I just finished my studies and I actually had gone to interview for a bank to be at the greeter's desk. I just wanted to get, when you were like, yes. I wanted to start working. And then I think I met very good people. I was lucky because the gentleman who took my interview, he said that, you're a little overqualified. So why don't you come into this side? And I was really scared, to be honest, because maths was a subject which I did not like at all. So I was like, how do I come into banking? And I was really scared. But alhamdulillah, I think I met the right people at the right time, and that's how I got into it. And then after that, I just really started enjoying it. And when you're younger, don't really think about making a career. It's more about being independent and yes. getting a salary. Yes. But then after that, slowly and steadily, I started enjoying it. I saw that it's very rewarding, and the kind of impact that it was creating, like even in my circle and in my family and everything. So then after that, I really started enjoying it. But yes, it took me a while to make my place over there, because people sometimes just think that girls don't take their work seriously. True. Or you're just over there because just to greet people, or the bank has just hired you just to have a positive image. So it took me a while and to prove myself. But I always feel, which I always tell a lot of young people that are girls especially, that I go and mentor or talk to, I always tell them that it's your work that will, if you make yourself, your value is, you make your value, your work. So no matter what, anything, wo phir jo hai na, that
becomes like noises in the you background. can be, you can be. But what you're saying is true. मतलब वो एक चीज़ हमने देखी है कुरुतलन, बहुत सारी women that I've talked to, उन्होंने कहा कि हम जिस फील्ड में गए थे बस लोगों को लगता था कि क्योंकि हमने वो चेकलिस्ट करनी होती है, इंक्लूजन है, ख़वातीन की इतनी सीट्स हैं, इतने % एम्प्लॉयमेंट दी है. अब जैसे कहते हैं कि स्टेट बैंक की वजह से बाकी बैंक्स के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि इतने % फीमेल्स अब होनी चाहिए, असेंबली में, पार्लियामेंट में इतने % होनी चाहिए, फिर चाहे वो रिजर्व सीट्स के आए. बट होता था कि बस ठीक है क्योंकि हमने एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, सो दे जस्ट यूज्ड टू हैव सम वेमेन. और वो थोड़े टाइम होती थी, उनको पता था इनके अपने इश्यूज होते हैं, कल को शादी हो जाती है या मैटरनिटी लीव पे जाते हैं, फिर आते नहीं आते. तो ये पोजीशन ऐसे ही वर्सेटाइल सी, jumping, somebody's coming, somebody's going. तो क्या वो वाला था माइंडसेट बिल्कुल शुरू में that? Yes, it was there. लेकिन ये है कि मैंने अब ये भी देखा है, and I think that with the passage of time, क्योंकि ये शुरू तो बिल्कुल बात हुई है इस तरह कि to be honest, inclusion was kind of treated, and I don't like saying this, लेकिन as a CSR thing. True. And even to fulfill the SDGs के हम उसको पूरा करें, align करें. लेकिन उसके अंदर जो है मैंने अब वो देखा है कि that is changing. Although yes, there's a lot of work that still needs to be done, but a lot has changed उस तरह कि the women are actually getting recognized for the work they do, instead so of merit just being based. Merit-based. Yes. So that is changing, and I think कि अब वो जो है थोड़ा सा नज़र भी आ रहा है कि जो especially if you have women in leadership, it kind of shows in your organization. For example, अगर आप products बना रही हैं या आप कोई भी इसका solution बना रहे हैं for women, लेकिन कोई औरत आपकी leadership में है ही नहीं, तो it doesn't kind of make a good fit. Yes. और I think one of the biggest failures जो normally आप product development में देखें तो यही होता है कि आपने जो testing की, जिनसे service किया, they all men. If the product is meant for a woman, लेकिन वो testing कहीं और हुई है तो वो eventually जाके fail हो जाती है. एक बड़ी funny example, जैसे गाड़ी के हमने देखे थे बिल्कुल शुरू में बहुत सारे accidents, women were getting affected क्योंकि women body proportion पे उन्होंने seat belt testing ही नहीं थी. So इस तरह की चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं. अच्छा, यू आर ऑल्सो ब्रेकिंग अनदर स्टीरियोटाइप. लोग कहते हैं कि ये जो बैंकिंग सेक्टर, नंबर्स, फाइनेंस, इट्स वेरी ड्राई. बट वी सी यू ट्रैवलिंग, वी सी यू गोइंग टू पैनल्स, फन भी चल रहा होता है, बातें भी हो रही होती हैं. तो इज इट एक्चुअली not very dry or you're lucky? Well, to be honest, like I said, when I was about to join banking, तो मुझे भी बहुत इस तरह का fear था कि मैं नहीं जाना चाहती banking में. मैथ्स से मैं पूरी ज़िंदगी डरती रही हूँ. I should run away from it. But to be honest, I think once I got into it and the kind of work which I realized is, and I would always appreciate my boss saying this, कि जब मैंने join किया ये तो उन्होंने मुझे एक बात की. उन्होंने कहा कि कुरुतलैन, you cannot do women financial inclusion sitting in a head office in Islamabad. So you have to go and see, and to be honest, मेरी सारी learning ही ground में जाके, field में जाके, female से मिल के. For example, जो KPK की female है, उसका जो issue होगा, it will be completely different from a woman in Sindh. So my learning actually, and I would say that because obviously when I joined, I was not an expert in this. But with time, with experience and with my learnings, I have kind of come to this point. So I really feel that going out there and meeting people on the ground really did make a big difference. And all my learnings that I put, and I tried to then bring them back. हम अपनी कोई product designing कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं. So now we keep all these things जो females face करती हैं when we are designing a product, or even if we do many initiatives. So we now do that keeping women in mind. So yes, अगर हम सोचे कि हम लोग एक जगह बैठ के कर सकते हैं, that will not be possible, which is why I always encourage people to go and meet, and आप जाके interact करें. और उससे ये है कि I would say numbers, हाँ, जिसको नहीं पसंद उसके लिए dry हैं, but I think it's what you make the most out of it. You can make the most out of that. वो possibility है, and that's very true कि जो आपको on ground experience और exposure मिलता है वो आपको कमरों में बैठे बैठे नहीं होता. And this is also a learning lesson for all the people जिनको लगता है बस एक दफ़ा पढ़ाई कर लो कमरे में बैठ के AC वाले कमरे में काम करेंगे और सैलरी मिलती रहेगी. ये भी नहीं होता, बाहर निकल के फिर भी करना पड़ता है. अच्छा कुरुतलैन, पर्सनली एक आपसे पूछना चाहूँगी, कभी वो प्रेशर फील हुआ कि जस्ट बिकॉज यू आर अ वुमन मैंने ओवर परफॉर्म करना है ताकि बाकी लोगों को लगे कि आई डिज़र्व द सीट दैट हैज़ बीन गिवन टू मी? To be honest, yes, I will not lie. लेकिन वो इसलिए नहीं था कि I have to prove it कि I deserve this seat. It was mostly about proving the people wrong who were thinking कि इसको ये position देके maybe it was not a very good idea, or maybe she will not be able to sustain it. Okay. But in that way, I'll always say कि हर चीज़ के positive और negative side होता है, तो pressure तो ज़रूर था. But I do feel कि, and I also have read somewhere कि pressure is also a privilege. So because of that pressure,
नो आई वाज मोर असर्टिव. मैंने अपने डेटा नंबर्स जो है ज़्यादा वो किए, दे वर ऑन माई फिंगर टिप्स. आई मीन जस्ट टू प्रूव कि यू नो द पोजिशन दैट आई हैव गॉट इज़ यू नो जस्ट टू प्रूव टू दोज पीपल हु आई न्यू कि हु आर साइलेंटली इन द बैकग्राउंड सेइंग कि यू नो डज शी डिजर्व दिस पोजिशन और नॉट. अच्छा, ये होता है कि मिल तो गई है लेकिन पता नहीं खुद ही कर सकती है कि नहीं कर सकती. और वही वाली आपकी बात है कि जब आपको इस तरह की कोई पोजीशन भी मिलती है, व्हिच आई ऑलवेज से कि व्हेन अ मैन गेट्स प्रमोटेड तो कोई भी क्वेश्चन नहीं करता कि व्हाई हैज ही गॉटन प्रमोटेड, बट व्हेन अ वुमन गेट्स प्रमोटेड देयर आर दीस साइलेंट कन्वर्सेशंस हैपनिंग इन द बैकग्राउंड कि ये वजह होगी, ये चीज़ वुमन डाइवर्सिटी इंक्लूजन का वो चेक लिस्ट मार्क करना है. लेकिन उसके बाद उस जगह को अपनी पोजीशन को सस्टेन करने के लिए और जस्टिफाई करने के लिए आई थिंक नॉट जस्ट मी, एवरी वुमन डज फील दैट प्रेशर. बट या इधर आप उस प्रेशर को नेगेटिवली ले सकते हो और या तो आप अपनी वो है ना हर चीज़ को पॉजिटिवली कर सकते हो. तो आई लुक एट इट लाइक दैट. आई थिंक दैट प्रेशर काइंड ऑफ पुश्ड मी टू यू नो परफॉर्म बेटर एंड यू नो मेक माई मार्क. सो यू यूज दैट टू योर बेनिफिट. वो वाली चीज़ है क्योंकि बहुत सारे लोग उसी से टूट जाते हैं, खुद भी स्केप्टिकल हो जाते हैं that maybe you know they are right, maybe I don't deserve. And I won't say मेरे भी हुआ है इस तरह कि काफ़ी दफ़ा बहुत प्रेशर फील कर लिया. Had my times where I felt कि you know I just want to give up and you know this is not worth it. लेकिन फिर I think that is just for a very small moment. और फिर उसके बाद when you try to look at the bigger picture and see that you know what this can do for many other women over there. So I think then that changes everything. क्योंकि वो भी ज़रूरी है setting an example कि बाकी वो कर सके. अच्छा, तो उससे मुझे बताना कि do you still think कि वो जो ग्लास सीलिंग वाला कॉन्सेप्ट बाकी इंडस्ट्रीज में भी बहुत बात होती थी कि ठीक है जितना मर्जी कर ले लेकिन वहाँ पे जा रहे हैं, उसके साथ फिर एसोसिएटेड कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं. इफ अ मैन गेट्स प्रमोटेड ठीक है जैसे भी हैं, बट व्हेन देयर इज अ वुमन लीडर, व्हाट शी इज़ वेयरिंग, हाउ शी इज़ कैरिंग हर सेल्फ, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, कितना स्माइल कर रही हैं लोगों के साथ, कितना नहीं कर रही हैं, तो भी एरोगेंस में चला जाता है. ये वाली सारी चीज़ें भी हैंडल करनी पड़ती हैं. यस, बिल्कुल करनी पड़ती हैं. बिकॉज द काइंड ऑफ वर्क दैट आई हैव टू बी वेरी अप्रोचेबल. आई कैन नॉट बी दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो कह के जी मैं आई एम वीटी या मैं नहीं बात कर रही या कुछ है, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ नेचर दैट आई हैव. बट अदरवाइज ऑल्सो आई हैव सीन कि जस्ट बिकॉज अ वुमन इज एन इंट्रोवर्ट और यू नो शी इज नॉट टॉकिंग, तो पीपल विल लेबल हर एज एन एरोगेंट पर्सन. एंड अगर कोई बंदी बहुत फ्रेंडली है तो वो सोच रहे होते हैं कि शायद उसको काम नहीं आता तो अपना काम ना करने की वजह से ओवरकम करने के लिए शी इज बीइंग ओवर फ्रेंडली. तो इस तरह की चीज़ें आती हैं. एंड देन आई वुड ऑल्सो से कि येस द ग्लास सीलिंग्स डू एग्जिस्ट, बट यू नो इट्स बिन 15 years that I've been in the banking industry and the financial sector, and I just feel now it has come to the point, if you look at it like that, कि glass ceiling जो है ना थोड़ी frosted हो गई है, and you can really break that glass ceiling with your you know the kind of work that you do. तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि for women especially you know don't try to fit in any mold. आप ये ना कहें कि जी लीडर बनने के लिए मुझे ये करने की ज़रूरत है, मुझे सांझे में ढलने की ज़रूरत है तो मैं लीडर बनूंगी. Just be yourself. Like you know there's so many inspiring leaders in the around you, चाहे you know लीना नायर हैं और भी बहुत है. वो it's just that you know they were unapologetically themselves. So they were themselves. They showed up being themselves and they made their mark and you know proved that you know they can be leaders as well. They can be leaders as well. Very true. और इसके साथ अब वो भी होता है ना कि अब इंतजार ना करें कोई टेबल पे आपको सीट देगा और आप खुद अपनी सीट हमने देखे बना रहे हैं लोग. और कुरतुलैन थोड़ा सा हमने वो भी एक शिफ्ट देखा है. बैंकिंग भी आपने अपने पास 15 years का कहा है, बट आई थिंक ओवरऑल इन एवरी सेक्टर वो आगे. तो जो खवातीन जो बच्चियाँ आप एक्सक्यूज बनाती हैं दैट मे बी यू नो थिंग्स आर नॉट ईजी, वो दूर से बैठ के हैं. आई थिंक जब आप प्रैक्टिकली आओ तो आपके लिए काफ़ी ईजी. एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, हम जितना इसको देखते हैं वी ऑल्सो हैव टू सी कि बहुत सारी चीज़ें जो लेट्स से आज से कुछ ऐसा पहले और यू नो व्हेन आवर मदर्स वर देयर एंड यू नो ऑल्दो माय मदर वाज अ वर्किंग लेडी एज वेल, और उस वक्त इतना नहीं था. अब मैंने ये देखा है कि अब बहुत सी चीज़ें हैं जो फीमेल्स के लिए वो कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस मैटरनिटी लीव, देयर फ्लेक्सिबल आवर्स, वर्क फ्रॉम होम है. अच्छा, टेल मी अबाउट ऑल दीज थिंग्स. क्या ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो रही हैं या पेपर की हद तक पॉलिसी है? नहीं बिल्कुल है. आई विल बी लाइक एटलीस्ट मैंने जहाँ तक वेर एवर आई वर्कड हुएवर आई इंटरेक्टेड विद वो सारी ये दिस हैज बिकम अ बिग नेसेसिटी कि इट्स नॉट जस्ट कि जब आप कहते हो कि जी औरत को काम करना चाहिए, आपको वो प्रोवाइड भी करना है उसके साथ पूरा एनवायरनमेंट. दे आर लाइक यू नो देयर इज हरासमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज आ गई हैं. पीपल आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट. फिर उसके अलावा आपके फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं. मैटरनल लीव जो है पहले 3 months की थी, अब
अब 6 months की हो गई है, you know, so a lot of changes are being happening. Day care centers खोले जा रहे हैं so women can bring their children to work. So I think ये सारी चीज़ें वहाँ they are being available. But इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि जब इतनी सारी चीज़ें दी जा रही होती है ना, and then फिर भी अगर being a female, I always say this to females कि फिर भी अगर आप इस तरह करें ना तो फिर they kind of lose confidence in females. Because जितनी भी मेरी conversations हुई हैं in my previous years working with different people, उसमें एक चीज़ ही होती है, वो यही कहते हैं कि हम इतना इन्वेस्ट करते हैं एक फीमेल पे, उसको ट्रेन करते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको प्रमोट भी करते हैं, उसको पोजीशन भी देते हैं, बट समहाउ डाउन द लेन यू नो शी विल जस्ट गिव अप एंड से कि नहीं आई कांट डू इट बिकॉज ऑफ XYZ रीजन. और वो रीजंस होते हैं, बट जब उसकी सोल्यूशंस आपको दिए जा रहे हैं तो आई थिंक वी शुड मेक मोस्ट ऑफ देम एंड नॉट गिव अप आवर ओन आइडेंटिटी. आई ऑलवेज से दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई नो मदरहुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग अ होम मेकर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम आप अपनी आइडेंटिटी ना जाने दें, स्पेशली व्हेन देयर इज सो मच वर्क नाउ गोइंग अराउंड इट. आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. और ऐसा ही है. और इसमें थोड़ा सा वो भी आता है कि एक विमेन आइडियोलॉजी हमारे इस सेंटर की, इस रीजन की रही है कि हम बेचारे हमारे साथ ही सब कुछ गलत होता है. पिस्ती भी आई हैं उस चक्की में, ये मैं नहीं कहूँगी, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट अवे फ्रॉम ऑल द विमेन, बट वो समहाउ हमने इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया है कि हमारे ऊपर ये प्रेशर है. समटाइम्स वो प्रेशर नहीं भी होता गुरुतलन, हमने खुद अपने ऊपर इम्पोज किया होता है. वो एक्चुअली ना माइंडसेट भी ऐसा है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जब मैं जाती हूँ, आई गो गिविंग फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग टू वुमेन ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, सो आई मीट डिफरेंट वुमेन. मैंने देखा है उनका माइंडसेट ही ऐसा है. अगर मैं उनको सारी चीज़ बताऊंगी और मैं कहूँगी कि जी वो सोल्यूशन भी आपके लिए ऑन ग्राउंड, वो कहेंगी कि नहीं हमें नहीं करना. You know, like for example, I remember I told this woman and she was there and she kind of snapped back at me and she said, मैंने कहा आपने कभी नहीं सोचा आप इतना काम करती हैं, सब कुछ, you know, घर से होम मेकर्स थी लेकिन साथ साथ काम कर रही थी, अपने कोई कपड़े का काम, ये वो सारा. So I told them कि जो इसकी अर्निंग आती है आप अपने लिए कुछ नहीं बचाती. You know, आपने कभी सोचा है कि आप अपने लिए कोई सेविंग साइड पे रखें? तो शी एक्चुअली स्नैप बैक एट मी एंड शी सेड कि हमारा कुछ बटा हुआ तो नहीं है, व्हाई शुड आई कीप इट फॉर माई सेल्फ. सो एक माइंडसेट भी है, हम कहते हैं कि हम अपने लिए नहीं कुछ कर सकते, ये सेल्फिशनेस के जुमरे में आ जाता है कि अगर आप कोई अलग साइड पे कर. हालांकि टू बी ऑनेस्ट आई हैव सीन दिस एंड इट्स अ फैक्ट कि जो फीमेल कोई अगर होती है, एम्पावर होती है या कुछ करना चाहती है, ठीक है, उसने अपने भी एक शौक होता है, एक पैशन होता है उसका, बट इट्स यूजुअली नेवर कि अ वुमन विल वांट टू डू समथिंग फॉर हर सेल्फ ओनली, इट्स फॉर हर फैमिली. स्पेशली यू नो and I've seen कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर्स में लगा रही होती ऐसा ही है, बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों की हेल्थ के लिए, यू नो शादी, बेटियों की शादी के लिए, इट्स ऑल दैट दे वांट टू डू. ओवरऑल लाइफस्टाइल एलिवेट होता है ना, तो वो खाली आपकी जात. और एक थोड़ी सी बात मैंने ये भी देखी है कि नाउ अब थोड़ी सी एक्सेप्टेंस इसलिए आ रही है, आपको पता है इन्फ्लेशन है, इतनी महंगाई है, अब आई थिंक वो फैमिली प्रॉस्पेरिटी के एंगल से अगर हम इसको देखें ना, बजाय कि हम इसको देखें कि जी हम फीमेल्स को वो कर रहे हैं. हमेशा मैं कहती हूँ कि आई थिंक गेट कीपर्स को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. हम लोग यूजुअली जब सेशंस करते हैं ना, हम औरतें जाके औरतों से ही बात करती हैं, उनको सॉल्यूशंस देती हैं, एंड वो फिर भी दे डोंट हैव दैट डिसीजन मेकिंग थिंग, जैसे मैंने आपको कहा माइंडसेट नहीं. बट आई थिंक अगर हम ये चेंज करके, अगर हम ये फैमिली प्रॉस्पेरिटी का इसका देखें और करें कि जी इट्स बेटर फॉर दैट. एंड आई रियली फील के जो जेनजीज, हम जेनजी के बारे में बात करते हैं ना, इवन जेनजी जो अब आ रहा है, अगर वो रूरल एरिया है, Tier 1 Tier 2 की अगर हम बात करें, अर्बन तो इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. बट वहाँ मैंने देखा है कि अगर वहाँ जो एल्डर्स थे, आपके दादा अब्बू, आपके हस्बैंड्स अगर नहीं चाहते थे कि औरत जो है एम्पावर्ड हो, मैंने देखा है बेटे चाहते हैं कि हमारी माँ जो है वो यूज़ कर सके, अपने पैसे सेव करे, वो पैसे भेज सके, मेरी बहन को आना चाहिए. तो वो माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज़ को लेवरेज करके हम लोगों को गेट कीपर्स को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है. वी नीड टू मेक देम ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि आपके घर की जो औरत है, खातून है, उसकी अपनी एम्पावरमेंट होनी चाहिए, उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए फाइनेंशियली, और वो किस तरह फैमिली की पूरी इकोनॉमी जो है उसको बेहतर करेगी. ये नहीं कि अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी तो बिल्कुल ही खुद ही अलग होके आपको टाटा बाय बाय कर देगी. फैमिली प्रॉस्पेरिटी उसको आप उस तरह अगर करें ना, आप उनका माइंडसेट उस तरह चेंज करें कि इट इज़ फॉर द फैमिली. एक तो उसकी अपनी भी एम्पावरमेंट है, आई नो कि शी विल फील अ लॉट बेटर, कॉन्फिडेंस आता है, सब कुछ है, लेकिन ये कि फैमिली वाइज भी उसको उस तरह प्लेस करना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये वो होता है ना कि अब बाकी, अब जैसे घर में आप जितना मर्जी काम कर लो, उसकी आपको पेमेंट जब तक मॉनेटरी नहीं, ऑब्वियसली नहीं होती, तो आपको रिवॉर्ड सिस्टम ही नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि पता नहीं मैंने किया, आज भी जो किया मे बी दैट्स नॉट इनफ. कोई भी, किसी भी खातून, किसी भी माँ को ये नहीं लगता कि आई हैव डन इनफ फॉर माय किड्स, देयर इज ऑलवेज समथिंग और दे लेफ्ट. लेकिन बाहर जब इस तरीके से आप हल्का सा भी खुद कुछ करके अर्न करो, तो एक आपको एकदम ग्रेटिफिकेशन भी आती है कि या यू नो इट्स वेरी फुलफिलिंग एक्चुअली. यस, इट इज वेरी फुलफिलिंग. अच्छा कुरसलन, वी रिसेंटली वर्कड विद सम वुमेन. ये वो खवातीन थी जिनकी एजुकेशन नहीं थी, सो हार्डली 5वीं किसी ने पढ़ी हुई, किसी ने 7th ग्रेड में करा हुआ, 1 2
थी जो मेट्रिक थी, ये वो थी जिनको अब ज़रूरत पड़ गई थी कुछ काम करने की. सो अ फ्यू ऑफ देम दे लॉस्ट देयर हस्बैंड इन सम एक्टिविटीज़, कुछ फ्लड्स में हो गए. सो ये वो वाला ग्रुप था. जब हमने इनसे, अब हमने तो जो इनको ट्रेनिंग की थी बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट आई एम रनिंग, तो हमने तो उनको मार्केटिंग बेसिक्स, बिजनेस, अच्छा क्या शौक है, सो वी डिड अ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन कि आप क्या उसको कैसे कर सकते हो. किसी को खाना बनाना आता था, किसी को स्टिचिंग का शौक था, किसी को कढ़ाई का था, तो हमने उनको अच्छा एज अ कम्युनिटी कैसे कैसे. बट व्हेन इट केम टू अच्छा कितने पैसे लेंगे ये वो करेंगे, नहीं. बैंक्स में अकाउंट नहीं है. उनको लगता है अभी भी बहुत मुश्किल है, क्या पता नहीं बाजी क्या आईडी कार्ड लेके जाना पड़ेगा, क्या होगा. तो कैन यू प्लीज़ शेड सम लाइट ऑन दिस. क्या ये चीज़ें आसान हो गई हुई हैं? क्योंकि दे आर स्टिल अफ्रेड. उनको लगता है पता नहीं क्या करना पड़ेगा, क्या क्या ये लेके जाओ, वो लेके जाओ. What is it like now? Mariam, I'll be honest with you, I don't blame them, क्योंकि I sometimes feel कि जो हमारे बहुत conventional systems थे ना पहले, जो चीज़ें थी conventionally, they were kind of made by men. I know men will not like me saying this, but for men. मतलब उस सिस्टम में ये था, आप देखें CNIC चाहिए होता है, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होता है. तो उसमें मैंने ये देखा है कि ऑब्वियसली रूरल वेमेन अगर आप हमारे देख लें, नॉट कि वो इरिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं की, बट उसकी ज़रूरत ही नहीं समझी जाती फीमेल के लिए, राइट. लेकिन अब इस तरह के मेजर्स बहुत से लिए गए हैं, बहुत से आसान अकाउंट्स हैं. और बहुत जो है, अगर किसी ने लोन लेना है तो उसका गारंटियर का जो मेथड है वो जो है, पहले था कि जी गारंटियर होना या कोलैटरल होना बहुत ज़रूरी है. उसके ऊपर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है. उसके अलावा मोबाइल वॉलेट्स खुल चुके हैं, यू नो, जो है, जो कि आपका सिर्फ आपका CNIC और जो मोबाइल नंबर है वही आपका अकाउंट नंबर बन जाता है. अच्छा, women they did not even have their own, अपने नाम पे तो सिम भी नहीं होती थी. शुक्र है वो आई है कि आपने अपनी बायोमेट्रिक. बिल्कुल बिल्कुल. वही सबसे बड़ी हिंड्रेंस ही जो आती है वो ये है. अगर हम आपका बोलेंगे सबसे पहले एक तो हमारे सोशल और कल्चरल नॉर्म्स तो हैं ही, ओनरशिप ऑफ मोबाइल फोन्स एंड सिम्स टू बी ऑन द वुमेन्स नेम. वो भी बहुत यू नो फैमिली की प्राइवेसी की वजह से. और इट्स नॉट जस्ट रूरल वुमेन. आई थिंक एक पॉइंट तक जब तक अभी ये नहीं हुआ कि भाई सिम आपके नाम पे होनी चाहिए, और आई थिंक एक आईडी कार्ड पे 5 सिम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. उससे पहले हम लोग भी, हमारे भाई हमारे फादर, एवरीबडी वुड इशू सिम्स ऑन देयर नेम एंड वी वुड बी यूजिंग इट. लेकिन वो चीज़ अब थोड़ी सी चेंज होती जा रही है. ऑफ कोर्स जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन लॉज आ चुके हैं. साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग के ऊपर भी है, हरासमेंट, जो सारी चीज़ें हो रही है, जो कि द प्रॉब्लम्स आर देयर एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल कि विच इज़ वाई इतनी हेजिटेंस थी फ्रॉम द मेल्स इन आवर सोसाइटी एंड इवन फ्रॉम फॉर फीमेल्स कि वो जाती थी क्योंकि वो फील करती थी वो एक्सप्लॉइट ना हो जाए. लेकिन ये कि बहुत सी चीज़ें जो हैं अब ये आइडेंटिफाई हो रही हैं और वाकई बहुत से ऐसे सोल्यूशंस हैं विच आर ईजी. फॉर एग्जाम्पल, आपका सिर्फ आईडी कार्ड है तो आपका एक आसान अकाउंट खुल सकता है. ठीक है. तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर उनका जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा है या बंदी है, उसने कभी भी कोई शी हैज़ नॉट हैड एनी यू नो इंटरेक्शन विद द बैंक और बैंक अकाउंट, अगर वो जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना मोबाइल वॉलेट खोलती है, सो शी विल स्टार्ट गेटिंग यूज टू इट. पैसे ट्रांसफर करना, और अब तो उन्हीं के अगेंस्ट आपको डेबिट कार्ड्स मिल जाते हैं. एवरीथिंग हैज़ बिकम अ लॉट ईजियर. ऑल्दो येस, मैं हमेशा फील करती हूँ कि इट इज़ एन ऑन गोइंग थिंग. ये चीज़ इवॉल्व होती रहती है. अगर आप इसी तरह ही रिसर्च करते रहें, डिज़ाइन थिंकिंग करते रहें, तो आपको पता चलेगा कि और भी कैसे आप जो है ना ये चीज़ें बेहतर कर सकते हैं और क्या सोल्यूशंस आ सकते हैं. बट फॉर नाउ येस, देयर इज़, अभी स्टेट बैंक की तरफ से भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं. ADB, स्टेट बैंक, वो जो है चाह रहे हैं कि जो है विमेन जो है फाइनेंशियल उस इंक्लूजन उनकी हो. और नॉट जस्ट दैट, वो है कि अगर वो कोई काम अपना शुरू करना चाहती हैं तो वो करें. और इट्स नॉट कि बस काम शुरू कर दें, बट इवन उनको फुल सपोर्ट मिले, पूरा एक इकोसिस्टम हो. तो जैसे आप कह रही हैं एंटरप्रेन्योरल ट्रेनिंग्स हो रही हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ. इट्स जस्ट नॉट कि आप फाइनेंशियल एक्सेस दे रहे हैं. आई थिंक इट्स अबाउट बिल्डिंग अ होल इकोसिस्टम फॉर वुमेन. वेरी एक्यूरेट. और आपने, मुझे अच्छा लगा, आपने बहुत डिटेल में उसको पूरा सम अप कर दिया, समराइज कर दिया, समझा दिया कि वो जो एक माइंड में भी आ रहा होता है कि पता नहीं क्या होगा, वो चीज़ें कितने लेवल पे काम भी हो रहा है और आसान भी हो रही हैं. सो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट. कोई आपकी डेटा प्राइवेसी नहीं कहीं जा रही, कोई आपको तंग नहीं करेगा. तो अब आप सेफ तरीके से कर सकते हैं. सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो, क्योंकि हमने खुदा न खासा ऐसे इंसिडेंट्स भी देखे हैं जहाँ आइडेंटिटी किसी और की और वो लिंक किसी और अनासर के साथ होती है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी अपने उसके साथ. यू इंटरेक्ट विद जेन ज़ी एज वेल. आपकी वो हो रही होती है, थोड़ा सा उनके बारे में बताइएगा. What is the energy that you feel? उनका mindset किस तरह का है? I'm sure इन चीज़ों के हवाले से acceptance तो बहुत ज़्यादा है, but then again we'll also come back to कितनी ज़रूरत है कि हम करिकुलम में, एजुकेशन सिस्टम में ही ये चीज़ें पहले से इंटीग्रेट करना शुरू करने बजाय ये कि जब आप
बड़े हो जाते हैं Yes. और जब कुछ नहीं समझ आती तब आके आपको जो है वो स्क्रैच से आई समझाना थिंक अब ये थोड़ा सा बिल्कुल है बिकॉज फाइनेंशियल लिटरेसी की अगर स्पेसिफिकली अगर बात करें स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स तो ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसी बात है जो उनको नहीं पता. सो व्हेन आई गो एंड टॉक टू फीमेल्स मैं उनको पहले ही कह देती हूँ कि मैं जो आपको सिखाने लगी हूँ फॉर एग्जाम्पल बजटिंग करना. हमारे घर की फीमेल्स ऑलरेडी बजट करती हैं, बेस्ट एट इट, इनफॉर्मली वो सब कुछ कर रही होती हैं. बट थोड़ी सी चीज़ का आइडेंटिफाई करना, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन अगर मैं उनसे पूछती हूँ कि नेट इनकम क्या है तो उनको नहीं पता. ऑल्दो उनको पता होगा कि पैसे कट के आ रहे हैं बट उसका टर्म क्या है नहीं पता. सो बेसिकली आई थिंक दे ऑलरेडी काइंड ऑफ नो इट, बट वो उस चीज़ को थोड़ा सा ना, आई थिंक उसकी जो एक्सेप्टेंस है कि जी फाइनेंशियल लिटरेसी आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इनहेरिटेंस आपकी फीमेल की क्या है वो उसको पता होनी चाहिए. सो शी इज़ अवेयर यू नो कि टुमारो व्हेन ऐसा कोई हो रहा है कि जो उसको उसका शेयर मिलना चाहिए, शी शुड नो हर राइटफुल शेयर बिफोर टाइम, बजाय कि बाद में कोर्ट्स के चक्कर लगा रहे होते हैं. एग्जैक्टली शी शुड नो व्हाट हर राइटफुल शेयर इज. इसी तरह अगर आपने कोई बेसिकली आपको पता होना चाहिए चीज़ें. और अब जिस तरह आप कह रही थी, आई थिंक अब ये थोड़ा सा उन्होंने स्टार्ट करने की कोशिश की है कि फाइनेंशियल लिटरेसी स्कूल करिकुलम में ऐड हो. और ये जो है कि पता होना चाहिए कि जी फॉर एग्जाम्पल बजटिंग क्या है, सेविंग क्या है, बेसिक चीज़ें जैसे नीड्स एंड वांट्स के अंदर डिफरेंशिएट करना क्यों ज़रूरी है. और यू नो बिजनेस अगर आपने इवन नॉट इफ़ यू आर नॉट इवन अ बिजनेस वुमन और यू डोंट वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, जनरली आपको नो हाउ पता होना चाहिए. तो आई थिंक ये ऑलरेडी थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है. बट येस आई थिंक अगर इसके ऊपर और ज़्यादा काम हो, फाइनेंशियल सेशंस होने चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होने चाहिए, एंड हो भी रहा है काम उस पर. लेकिन आई थिंक इस पर और भी अगर काम होता रहे तो इट विल बी वेरी कोई बुराई नहीं है, इट्स ओनली गोइंग टू बी बेटर देन दैट. राइट. Right, so you interact with a lot of people, organization, corporate level पे भी हो रहा होता है, then students के level पे भी हो रहा होता है, जहाँ फिर आप sessions के लिए भी जा रहे हैं. So any story जो किसी का किस्सा, कहानी, somebody shared something that you stayed with you, अभी तक mind में stick है, कुछ ऐसी चीज़? वेल इस तरह की हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे पता भी चलती हैं और वो भी होता है. सो रिसेंटली ऐसा था कि बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद मोबिलिंग बैंक, तो हमने एक इनहेरिटेंस कैंपेन के नाम से, इनविजिबल एयर्स के नाम से हमने एक लॉन्च की थी. जिसके अंदर बिकॉज हमारा मोटिव ये होता है मोबिलिंग बैंक में, हमारा बहुत ऑब्वियसली वुमेन एम्पावरमेंट पे है, तो हम लोग जो भी इनिशिएटिव्स लेते हैं वी काइंड ऑफ ट्राई टू कीप वुमेन इन आवर माइंड कि हाउ इट कैन बेनिफिट वुमेन एंड हेल्प देम. तो जब हम ये कर भी रहे थे कैंपेन, तो हमें पता चला था रिसर्च में कि 97% of women in Pakistan don't know their rightful share or they don't end up getting it. It's only the 3%. So there's a very nice campaign that we did. It's available online as well, Invisible Heirs के नाम से, जिसके अंदर हमने एक शरिया compliant calculator एम्बेड किया था अपने मोबाइल ऐप में, सो दैट यू नो पीपल वुमेन कैन जस्ट गो गिव बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड यू नो फाइंड आउट देयर राइटफुल शेयर. डू मेन लाइक दिस? हाँ, ये उस पे यही था कि मैं बेसिकली इसी तरह गई, तो मैं एक स्टूडेंट ही थी, बल्कि आई वॉन्ट नेम द इंस्टीट्यूशन, बट इट्स अ वेरी रिनाउंड इंस्टीट्यूशन, और इसी तरह हमारा वहाँ सेशन हो रहा था. तो जब मैंने, बिकॉज ऑब्वियसली वी टॉक अबाउट यू नो हमारी क्या ऑफरिंग्स हैं, यू नो व्हाट ऑल बेनिफिट्स कैन यू गेट. तो मैं जब वो बात करी थी तो एक स्टूडेंट खड़ी हो गई और मेरे से लड़ने शुरू हो गई. मुझे कहती हैं कि आप कह मैंने उसमें, क्योंकि अगर वो आप कैंपेन देखेंगे तो उसमें यही है कि भाई आपको आपका राइटफुल शेयर पता होना चाहिए. इट्स अ वेरी वेरी नाइसली मेड कैंपेन. आई वुड यू नो सजेस्ट एवरीवन, मैं इंकरेज करूँगी कि ज़रूर देखें जाके, इनविजिबल एयर्स के नाम से. तो उसने मुझे कहा कि भाई आप क्या हमें सिखाना चाह रही हैं कि हम जो है जाके लड़ें और कहें कि हमारा वो चाहिए. तो मैंने कहा नहीं, दैट इज़ नॉट द पॉइंट. मेरा सिर्फ पॉइंट आपको ये बताने का है कि आप मांगे नहीं, लेकिन कल जब आपको मिल रहा हो तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए. तो शी गॉट वेरी एंग्री एंड शी वॉकड आउट ऑफ द रूम. सो एंड इवन जब मैं इस तरह के सेशंस कर रही होती थी तो लॉट ऑफ जो कहना चाहिए जो थोड़ी सी एल्डरली खातून थी, दे वुड गेट ऑफेंडेड, क्योंकि वो इस तरह कभी कभार आता है कि यू नो उनको लग रहा होता है कि शायद हम लोग जो हैं उनको कोई मिस गाइड कर रहे हैं या कुछ इस तरह कर रहे हैं, किसी वेस्टर्न एजेंडा के तहत आप उनके माइंड में कौन सा सीड डाल रहे हैं, और यही वो सीड है जिसकी वजह से शायद आजकल शादियां नहीं चल रही. एग्जैक्टली, इस तरह की सारी चीजें. बट टू बी ऑनेस्ट इट्स जस्ट अबाउट आपको एम्पावर्ड होने का मतलब ही है कि आपको पता है यू नो कि मेरा राइटफुल शेयर क्या है. और ये तो वो चीज़ है ना जो मैं कहती हूँ गुरुतुलैन, ये तो आपके रिलीजन ने आपको राइट दिया है. इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स. और ये वो है जो इस्लाम ने आपको ऑटोमेटिकली दिया है, जो बाकी रिलीजन्स में पहले नहीं मिल रहा था. बट अभी भी लोगों को लगता है कि क्या पता नहीं, कोई बात नहीं, हमारी तो वैसी शादी हो जाती है, आगे पूरा सिस्टम है, भाई की रहे, बाप की रहे, उनके आगे नहीं उसमें आना चाहिए कि पता नहीं टैबू टॉपिक. एग्जैक्टली, हम बात नहीं करना चाहते. और यही होता है अक्सर कि वही माइंडसेट वाली बात मैं आपको बताऊं कि हम औरतें खुद भी हम लेट गो कर देती हैं, यू नो हम इमोशनल हो जाती हैं, हम कहती हैं कि भाई चलो ठीक है, वही आपकी वाली बात.
डाउरी मिल जाती है तो Yes. कहते हैं कि ठीक है बस दिस वो वाज इनफ, हो गया हमारा, दैट इज़ फाइन. आपका वो पर्सनल डिसीजन है, आपकी अपनी एफिलिएशन है फैमिली के साथ. अगर आप अपने भाई को देना चाहते, दैट्स योर ओन चॉइस, बट वो चॉइस आप खुद कर रही हो. ये ना हो कि आपको पता ही ना हो कि दिस इज माई राइटफुल शेयर, और आपको पता ही ना हो, आपको मिल ही और ना रहा बहुत हो. सारे ऐसे किस्से हैं जिसमें नहीं पता होता, बिल्कुल नहीं पता बिकॉज द होता. वुमन इज Yeah. ऑब्लिवियस, उसको Yes, आइडिया नहीं yes. है, उसको कभी पता ही नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो Exactly, मैंने सकता है. आपको जैसे बताया ना, जब हम ये कैंपेन कर रहे थे, जब रिसर्च किया तो उसमें पता चला कि पाकिस्तान में 3. सिर्फ इट्स द 3%. 3%. 97% of women don't even know or end up not getting their share. That's a big number. Yes, so which is why we were very happy कि ये, and that is why that campaign is very close to our hearts, क्योंकि अभी felt कि need होनी चाहिए. But फिर भी acceptance वो mindset वाली बात है. देखिए, हम आप एक solution आप दे सकते हैं, आप चीज़ें कर सकते हैं, but as when if you're not working on the mindset of women, अगर हम सोचेंगे कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, या we don't deserve this, you know, तो वो, और ये चीज़ overnight नहीं change हो सकती. Although like I say कि बहुत improvement आई है, बहुत सी चीज़ें change हो गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम है, and it's an ongoing thing. We need to keep on doing that. अच्छा, but then again, आप जिन टॉपिक्स के ऊपर कर रही हैं और एडवोकेसी में भी जिनको हाईलाइट करी होती है, हम भी अगर इसको कर रहे होते हैं तो वी हैव टू डू इट इन अ वेरी सटल वे कि किसी के सेंटिमेंट्स भी हर्ट ना हो, क्योंकि जैसे आपकी बात थी, हमारा एक कल्चरल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग और पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहा है कि लोगों को लगता है आप पता नहीं आप क्या कराना चाह रहे हैं, घर में लड़ाइयाँ करवाना चाह रहे हैं, तो सो easy टॉपिक्स के ऊपर बात करना, लाइक आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन या हेल्थ, इट्स वेरी इजी, बट देन अगेन हैट्स ऑफ, क्योंकि जैसे आपने कहा शी वॉकड आउट ऑफ द रूम. आई डोंट नो हाउ यू टुक दैट. मुझे भी रिसेंटली एक पैनल पे मैंने अपना पूरा कर दिया, एंड देन इन द एंड ही जब क्वेश्चन आंसर्स का हो रहा, सो ही सेड दैट everything aside, but I would like to disagree with my sister. तब तक तो मैं ऐसे ही देख रही थी, मुझे पता नहीं था उन्होंने कहा, बट फिर मैं तो obviously I had an answer, वो आप कर रहे हो तो, लेकिन एकदम से वो होता है hello what just happened. I'm sure that happens, but then you know that's part of the thing. देखिए, आप अब जा सकते हैं, I cannot expect everyone to be on the same page, तो it'll take time. Like I say, it's the mindset. वो नहीं, इसी तरह जब मैं गई हूँ तो I remember मैं इसी तरह, और आई रिमेंबर मुल्तान, और सही गर्मियाँ थी, एंड आई मीन आई एन्जॉय दिस, तो मैं माइंड नहीं करती गर्मी है सर्दी है, एंड दे वर दिस वुमेन सिटिंग ओवर देयर, और एक उनमें से थी खातून, वो खड़ी हो गई मिड लाइक, एंड शी सेड ये सारा स्कैम होते हैं, ये सब बकवास है, और मैंने नहीं सुना, और उसने अपनी बेटी का भी हाथ पकड़ा, वो चली गई. बट देन आई स्टिल कंटिन्यू, सो हूएवर वांटेड टू सेट दिस एट, और मतलब वही वाली बात है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि जी आप मेरे साथ एग्री करें, बट यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड, एंड होप कि स्लोली एंड स्टेडली इंशाल्लाह ये होगा. मैं कहती हूँ उनको भी ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले से अपने से बड़ी जनरेशंस को वही चीज करते देखी, उनके लिए दैट्स नॉर्मल. ट्रू. सो इट्स एक्सपेक्ट करना कि जी एक ओवरनाइट चेंज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा नहीं, बट हाँ आई थिंक वो उनके दिमाग में सीड रह जाता है, एटलीस्ट दे स्टार्ट थिंकिंग, और इवन इफ दे आर नॉट थिंकिंग, मे बी दैट डॉटर इज गोइंग टू रिमाइंड द मदर कि कोई ऐसी वाली भी चीज होती है. ओके, सो देयर आर हाइज एंड देयर आर लोज, जैसे आपने बात की. सो बर्न आउट कैसे मैनेज करती हैं पर्सनली व्हेन इट्स वेरी स्ट्रेसफुल? इस तरह के इंसिडेंट्स पे काम भी हुआ है, गर्मी में भी गए, ऑल्दो यू डोंट माइंड गर्मी, बट स्टिल. यस, आई टू बी ऑनेस्ट, मेरा बर्न आउट हो रहा होता है, मेरे लिए एक स्पेसिफाइड डे होता है जब मैं आई डोंट डू एनीथिंग एट ऑल. I'm just at home, in my room, in bed mostly, watching Netflix. Okay. And that's about it. That day I think I don't even go out anywhere. Okay. मैं कमरे से निकलती ही नहीं हूँ. I think burnout को करने के लिए, you know, हर बंदे का different होता है. Some people just want to be left alone. So I think I'm one of those people. If I get one day to myself, तो मैं I think I recharge. Because I know कि I can't be burnt out for very long. I have to keep the momentum going. तो वो आप अपने intervals बीच में ले लेती हूँ. Yes, हाँ. Like for example, अगर मैंने कहीं जाना है, I've gone to मुल्तान, ये वो सारा, I'll come back, I'll take a day off, you know, or on the weekend I'll do this कि family friends सबको बता देती हूँ कि you know, please मुझे कोई contact ना करे, I'll just be home. But I think it's part of the thing कि you know, and when you enjoy your work, I think वो burnout भी बहुत कम time के लिए होता है. I think मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी unnecessarily छुट्टी की हो, like you know, even if I'm unwell, मैं अगले दिन I just want to go get back to work. So I really feel कि when you feel passionate about something ना, आपका कोई काम होता है जो बहुत fulfilling होता है, तो I think burnout फिर इतना feel नहीं होता. Although I know we are humans, burnout तो हो जाता है, and it's very good to address that as well. I think कि even if you're burning out और आपको help की ज़रूरत है,
Please ask for that. ask for help. I've learnt it the hard way. But ये कि वो होता है कि हम कहते हैं ना कि अगर हम हेल्प मांगेंगे तो वीक शो होंगे. हाँ, इमोशनली आपको उस तरीके से होगा हमने तो वो लिया होता है. yes, but नहीं you should. अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, which is why I also tell a lot of females, and I have started doing that myself as well, कि आपका ना अपना एक सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए, not just your friends. आपके mentors होने चाहिए, people who lift you up, जो आप जिनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं. They should be those people जो आपको कुछ सिखा रहे होते हैं, you know, who've done and they've gone through life, they've done something. तो I feel कि they really help also. तो एक आपको अपने लेसन से वो वाला एक टाइम वेस्टिंग वाला नहीं है जहाँ बैठ के बस आप एक दूसरे के बारे में क्रिप कर रहे हैं. वो भी करना चाहिए. I think that's part of unwinding. unwinding ज़रूरी है. लेकिन ये कि I really feel कि if you have a support group ना जो आपको, and I feel कि women need that आपस में जो एक दूसरे को uplift करें. तो मैं हमेशा जब भी जाती हूँ when I go have these sessions, mentoring sessions and all, I always tell them कि please never इस तरह मत करें कि एक दूसरे की टांग खींचने में लग जाएं, जो कि हो जाता है. प्रोफेशनल जेलसी आ जाती है. इट्स अ नेचुरल ह्यूमन फीलिंग. आप ये भी नहीं कह सकते कि आप सबका वो नहीं करें, लेकिन ये कि let that feeling pass and try to uplift each other, because when women support women, it can create magic. It can. Okay, now tell me the most used phrase in corporate meetings nowadays. Let me align internally. Okay. So that's a polite way of. Yes, yeah. How many tabs are currently open in your mind? अभी तो मैं गिन भी नहीं सकती. अभी ये कि मैंने इसके बाद जिम जाना है, फिर वो है, मैंने नेटफ्लिक्स का कौन सा सीरीज के एपिसोड देखा था. सो आई थिंक वो एक चीज़ चलती रहती है. मैं मंडे का भी अभी सोच रही हूँ, लास्ट वर्किंग डे है, तो ऑल दैट नीड्स टू बी डन. सो आई थिंक अभी तो मेरे दिमाग में मोर देन 50 तो खुले होंगे. मतलब कांस्टेंट आपका चल रहा होता है. और मैं कहती हूँ स्पेशली इफ यू आर अ वुमन, तो आपका एक माइंड यहाँ होता है, थोड़ा वहाँ होता है, वहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो एट द सेम टाइम एग्जैक्टली. एंड आई ऑलवेज से कि आई थिंक women are, I'm not saying only women, I think men could be good multitaskers as well, but women are, but studies show that women are better at, वो मतलब it's like natural multitaskers हैं, you know, like I'll have women जो मैं हमेशा कहती भी हूँ, जो मेरी स्पेशली फील्ड स्टाफ है, वो ये कहती हैं कि जी हम बैंक में काम करती हैं मैडम, और जब हम घर जाती हैं हम फिर खाना बनाती हैं, you know, जिस तरह उनका हाउस होल्ड होता है. कुछ लोग फैमिलीज होती है कहते हैं हमारे बच्चे सिर्फ हमारे हाथ का खाना खाते हैं, तो वो वाली रिस्पांसिबिलिटी भी साथ. फॉर मी आप लोग आर मोर रिजिलियंट रादर देन मी मे बी सिटिंग. मैं कहती हूँ मेरे से ज़्यादा आप लोगों के अंदर रिजिलियंस है, दैट आप लोग जो है इतनी मल्टीटास्किंग करते हैं. तो आई थिंक वुमेन जनरली नेचुरल मल्टीटास्कर्स होती हैं. सो आई थिंक हर वुमेन के दिमाग में ना टैब्स खुले हुए होते हैं. कभी ऐसे नहीं हो सकता कि वो शी इज जस्ट थिंकिंग अबाउट वन थिंग. मैं हमेशा कहती हूँ इफ अ मैन इज वर्किंग, बेशक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, कहीं भी काम करें, उन्होंने वापस जाके घर का काम नहीं करना होता. एग्जैक्टली. बहुत कम है जो आजकल पार्टनर कोलैबोरेशन में कर रहे होंगे, बट नॉर्मली नो वी डोंट सी दैट हैपनिंग. उन्होंने जाके ना बर्तन धोने, ना कपड़े धोने हैं, ना खाना बनाने, ना बच्चों को सुलाने, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती. बट इफ अ वुमन इज वर्किंग, सो ऑफिस वाला काम भी है एंड देन घर वाला काम भी है, सो दैट्स लाइक साइमल्टेनियसली मैनेजिंग टू डिफरेंट जॉब्स. एग्जैक्टली. और वो भी प्रेशर होता है टू डू ऑल ऑफ देम, लाइक गिविंग योर 100%. अच्छा कि वहाँ पे भी नेग्लेक्ट ना हो या वो क्योंकि ये नहीं है कि हमारे पे प्रेशर तो होता है, लेकिन हम खुद औरतें भी ना वो अपने आप को वो करती रहती हैं. आई थिंक औरतें अपनी आप की बिगेस्ट क्रिटिक होती हैं, एटलीस्ट आई एम. तो मैं तो ये फील करती हूँ कि उनके ऊपर प्रेशर खुद भी होता है, खुद भी डालती हैं. दे जस्ट वांट टू गिव देयर 100% whether it's at home or work both. तो आई थिंक वो इसलिए ऑनगोइंग रहता है उनके लिए. ओके, नाउ टेल मी कुरुतुलैन की फेवरेट सोशल मीडिया एप्लीकेशन कौन सी है? Instagram for posting or scrolling? I like scrolling. Posting के लिए I think आजकल मेरी favorite LinkedIn है. LinkedIn. Yes, yeah. Okay. But I like scrolling. Instagram मुझे पसंद है, and it's not like, you know, I think काफ़ी चीज़ें उस पे ना मिल जाती हैं. For example, if I like a certain person talking, तो उनकी जो है ना small वो reels आती हैं. They're very inspiring. Apart from that also आपको lifestyle generally जो है ना बड़ा अच्छा. वो आपके algorithm के हिसाब से आपको content दिखा रहा होगा. बट लिंक्डइन अभी खैर उसने काफ़ी ले ऑफ्स भी किए हैं, सो पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट. एक वो प्लेटफॉर्म जो लोगों को जॉब से कनेक्ट कराने के लिए बना गया है. दे हैव डन अराउंड आई थिंक 600 राइट. लेकिन आई थिंक लिंक्डइन भी ना, इट्स जस्ट हाउ यू यूज इट. आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म क्योंकि लोग कनेक्ट कर पाते हैं. आप अपना जो है वट एवर वर्क यू आर डूइंग आप वो दिखा सकते हैं. आई रियली फील कि द काइंड ऑफ जो हम इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं ना, इट्स ऑलवेज गुड कि अगर कोलैबोरेट कर सकें. साइलोज में हर कोई काम कर रहा है, डेवलपमेंट सेक्टर
काम कर रहा है, पब्लिक सेक्टर काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, बट व्हेन वी कोलैबोरेट तो आई थिंक वो जो प्लेटफॉर्म एक है ना एक दूसरे को देखने का कि कौन क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है, क्या कर रहा है, टू कोलैबोरेट, आई थिंक दैट रियली मेक्स अ गुड वो। तो शुक्र है अभी तक वो ट्रैवलिंग पिक्चर से क्लटर नहीं हुआ अभी तक, शुक्र है, यस, पीपल आर कीपिंग इट टू दैट। अभी भी खैर मैं काफी कुछ पोस्ट देख लेती हूँ, लेकिन ये है कि आई थिंक अभी तक उन्होंने वो मेंटेन किया है, एंड आई होप इट स्टेज दैट वे। अच्छा, जैसे फेसबुक का पहले होता था, उसने एक अपनी रखी हुई थी, यू जस्ट नो योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स वाली एक वो जो कम्युनिटी वहां से स्टार्ट हुई थी, बट अब वो इतना हो गया कि आपकी एसेंस खत्म हो जाती है। आई डोंट थिंक कि कोई इतना फेसबुक यूज करता है। पीपल हैव शिफ्टेड। व्हाट्स योर कंफर्ट फूड? Sushi. Okay. Yes, I can live off sushi. So I mean, not just have it for breakfast, वो नहीं, लेकिन apart from that, I can have it for lunch, dinner. और वही if I've had a rough day or if I've had like I'm tired or whatever, तो मेरा reward होता है कि घर जाके मैं sushi order करूँगी. I'll go out and have sushi. Right. Now I'm going to ask some rapid fire questions. Okay. Don't take a lot of time, बस जो जल्दी mind में आता है अपने बताने. Okay. Respect or popularity? Respect. Respect. Confidence or competence? Competence. I will say competence क्योंकि competence अगर आपका वो फिर confidence follows. Yeah. But otherwise we've seen a lot of people who are super confident, but they're not मतलब भी आप competent नहीं, आपको आपका काम नहीं आता, तो उस confidence का फिर क्या फायदा? Okay. Equality or equity? Equity. I'll say that क्योंकि देखिए क्वालिटी का वो होता है ना, हम कहते हैं कि एक लैडर है, हम ये लैडर पे दो सबको मिले ताकि ऊपर चल जाए, बट इक्विटी इज मोर लाइक यू लेटिंग एवरीबडी स्टे एट द टॉप, यू नो, स्टेइंग ओवर देयर। तो आई थिंक इक्विटी वुड बी समथिंग आई वुड चूज। कुरतुलन क्या करती हैं, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क? आई थिंक दोनों करना चाहिए, लेकिन ये है कि आई थिंक हार्ड वर्क विद इंटेग्रिटी होना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट वर्क आप करें ना तो इट वोंट टेक यू very far. I mean, yes, for a little time अच्छा होता है, and to be honest, हाँ ये मैंने बहुत सुना है कि एक हार्ड वर्क है और स्मार्ट वर्क है, बट आई थिंक हार्ड वर्क विद इंटेग्रिटी। क्योंकि मैं आजकल अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहती हूँ, मैं कहती हूँ ठीक है एक दिन पहले डेडलाइन से कुछ टाइम पहले काम करना शुरू करेंगे, बट फिर अब उनके पास इतनी हेल्प है, दे हैव AI टूल्स के दे विल गिव यू द बेस्ट। एग्जैक्टली। मैं कहती हूँ ये नहीं, ये दिमाग में रिटेन नहीं रहेगी, इट्स नॉट गोइंग टू टेक यू। कहते मैम ग्रेड तो आ गया ना अभी का, तो ये चीजें तो बस ठीक है। आई थिंक बिट ऑफ बोथ होना चाहिए, बट ये नहीं कि बस आप स्मार्ट की तरफ ही देखें। आई थिंक हार्ड वर्क विद इंटेग्रिटी करें तो फॉर द लॉन्गर टू बी, अगर फॉर द शॉर्ट टर्म ठीक है आप कर सकते हैं, बट अदरवाइज पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी लोग जो हैं दे आर स्ट्रीट स्मार्ट। Yes. वो उस तरीके से कोई ना कोई जुगाड़ निकाल के लास्ट तो आपने we as a nation are like that कि हम कोई अपना मुश्किल वक्त से भी ना कोई उसका निकाल लेते हैं, फायदा निकाल लेते हैं। we kind of it works in our favor. Yes. Okay. Passion or discipline? I think discipline. इसलिए क्योंकि फॉर एग्जाम्पल पैशन आपको एक जगह पहुंचा सकता है, लेकिन वहाँ रहने के लिए यू नीड डिसिप्लिन। सो इफ यू पैशनेट अबाउट लेट्स से बिकमिंग अ लीडर, लाइक आई वुड से कि चलो ठीक है मैं अगर अब कहूँ लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो नहीं होगा ना। आई थिंक डिसिप्लिन ही है दैट आई स्टक अराउंड फॉर 15 years। अदरवाइज रोज आपके मूड पे डिपेंड करो तो आप नहीं करोगे, और पैशन तभी चल सकता है साथ साथ डिसिप्लिन हो तो। आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे दिन होंगे कुरुतलैन जहाँ यू डोंट feel like getting out of the bed, you don't feel like going to the work, लेकिन क्योंकि एक आपने डिसिप्लिन रखी हुई है, जाना ही है। बिकॉज फिर मैं सोचती हूँ कि लाइक द काइंड ऑफ इम्पैक्ट आई वांट टू क्रिएट, वो जो कि बचपन से वो जो प्रिंसेस डायना वाला था वो ये उसका, देन आई थिंक अबाउट इट कि आई वांट टू कीप दैट मोमेंटम गोइंग, एंड वाकई सीरियसली होता है, व्हिच इज व्हाई फिर बंदा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दैट बैलेंस ऑल्सो, कि आप अपनी एनुअल लीव्स लें, आप जाएं, रिलैक्स करें, ताकि यू कैन कम बैक विद अ फ्रेशर माइंड एंड डू योर वर्क, इंस्टेड कि आप अपने आप को बस बिल्कुल वो कर दें कि नहीं काम ही करते रहना। उस पर ये कि फिर आपका जो आई थिंक प्रोडक्टिविटी है वो बड़ी इफेक्ट होती है। कुरतुलन अगर बैंकिंग सेक्टर में ना होती, ये सब ना करी होती, तो ऑल्टरनेट करियर क्या होता? आई थिंक आई वुड बी अ लॉयर। Okay. Yeah, because वो मतलब एडवोकेसी और बोलने का शौक पहले से था। हालांकि बचपन में इतना ज़्यादा नहीं था। आई वॉज एन इंट्रोवर्ट। मैं हमेशा कहती हूँ कि आई रिमेंबर जब हम बचपन में वी वर गोइंग, आई वाज डूइंग माय ओ लेवल्स, तो हम लोग ट्यूशन से कभी फ्रेंड्स जाते थे बाहर, तो वी यूज्ड टू बी सिटिंग इन अ कार, माय फ्रेंड्स यूज्ड टू से कि तुम इतनी क्वाइट हो कि कभी हम भूल जाते हैं कि तुम गाड़ी में बैठी हुई हो। और अब व्हेन दे लुक एट मी, सो आई थिंक व्हेन यू पैशनेट अबाउट समथिंग एंड इट कम्स टू यू विद ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, तो अब मुझे वो है, लेकिन बचपन से मुझे बस
ये था आई वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट Impact. इन So व्हाटएवर through वे the- आई कैन. तो उस वक्त मुझे लॉ अब मुझे वो था align कर जाता है ना कि आप मैंने you- सोचा था कि जी लॉ पढ़ूंगी तो मे बी यू नो आई कैन फाइट केसेस एंड हेल्प वुमेन एंड यू नो अदर पीपल हु आर इन नीड. तो ये एक चीज़ मुझे थी टू जस्ट टू क्रिएट इम्पैक्ट. सो आई थिंक आई वुड हैव ऑप्टेड You टू बी अ would have been a lawyer, Yes, yeah. right. But I'm sure you're doing sort of same work or Yes, maybe trying better. to, क्योंकि yes, वो- yeah. trying to, yes. In the very end, हमारी audience को जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, especially women, young girls who are still skeptical about this career कि पता नहीं यहाँ पे वो attain हो सकती हैं, क्योंकि ये वो है, अभी भी मैं कहती हूँ बैंकिंग सेक्टर वो है जहाँ लोगों को पता है ये this is your end. yeah. इससे ऊपर वाला तो है ही male dominated. yes, So sir. what would you like to say to them? I would just like to say to them कि please believe in yourself. मुझे हमेशा ये लगता है कि हम फीमेल्स जो हैं वो अपने आप को खुद अंडर एस्टिमेट करती हैं. बट ट्रस्ट मी वट एवर लाइफ थ्रोज एट यू देर इज़ नथिंग दैट यू कैन नॉट हैंडल. सो टू प्लीज़ अपने अंदर बिलीव करें, अपने आप को वर्क करें, कीप ऑन इवॉल्विंग, वेदर इट्स टू एजुकेशन, वेदर इट्स डूइंग सम कोर्स और यू नो एनीथिंग लाइक दैट. हैव अ गुड सपोर्ट सर्कल, हैव गुड पीपल अराउंड you who can mentor you, and at the end of the day just support each other. So I really feel that's very important, and nothing out there मैं females को कहती हूँ कोई ऐसी, it's not just banking. अब आप देख रहे हैं astronauts जो हैं वो भी Yeah, female हैं, they're yes, going up to yeah, Mars and all of yeah. that. तो कोई ऐसी field नहीं है जहाँ females नहीं fit in हो सकती. It's just about believing in yourself and not giving up. Not giving up, Yes. right? और अब तो बड़ा आसान भी है. Yes. People like you, the examples, they're accessible. Yes. आपके पास social media, आपके पास phone है, बिल्कुल, आप workshops बिल्कुल. के लिए, seminars के लिए आपने physically नहीं जाना. There is so much, Exactly. इतनी सारी options अब आपके तो पास. बहुत ज़्यादा digitally भी Yeah. है, आप online sessions ले And सकते even हैं. free sessions. बिल्कुल, तो बिल्कुल it's not ऐसा like ही you है. have to हाँ. invest for that as Exactly. well. So मैं ये कहूँगी keep हाँ, investing in keep yourself investing. and believe in yourself. And यही वाली बात है कि never think कि you know there is a job or a title that which you cannot be attained by you, whether you're a female or a male, but of course focusing on females Focusing more on क्योंकि female. उनके ऊपर pressure ज़्यादा So होता है. it's Yes. possible. It's very nothing is impossible. Nothing is Yes. impossible. Yeah. Yeah. Thank you so much, Kurutula. Thank you, It was Mariam. lovely having you. Same here. I really मज़ा enjoyed आया. my conversation. Yeah. बहुत मज़ा आया. No. Yes. Yeah. This is it from this episode. Inshallah, we'll see you next week with another guest. Till then, take really good care of yourself. Allah Hafiz.